From its pivot to Asia to the Indo-Pacific strategy, from the revival of the otherwise vestigial Quad in the South Asia and the Pacific region to the I2U2 in the West Asia, and from its new mercantilist posture to its such anti-China infrastructure initiatives as BDN, Blue Dot Network, B3W, Build Back Better World, and the Global Gateway, the United States, alongside its allies, is hell-bent on keeping China from making inroads and gaining influence across the globe. Moreover, in its bid to revive its lost status and reliability, the United States is openly thrusting a new Cold War on China by financing anti-China notions and furthering anti-breed developmental projects. In this connection, our today's sitting deals with one of the most recent initiatives launched by the United States and its allies. Under the title of the India-Middle East Economic Corridor, a new infrastructure project has been launched on the sidelines of G20 summit in India this year. The project, although not overtly stated by the US State Department, is aimed at working as Biden's road initiative to the dismay of China's BRI. Yes, LA people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Preceding background की backdrop में हमारे पास जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है आज की सिटिंग में वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और IMEC. It is very obvious that there is an ongoing Cold War between the United States and China for global governance and to attain the role of global policeman. In this connection, the United States is trying to the fullest of its capacity and potential to contain and confront China at all possible fronts. इसी वेन इन कनेक्शन में जिस नए प्रोजेक्ट को और इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज ड्यूरिंग G20 समिट इन इंडिया, उस इनिशिएटिव का नाम है द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. Like always and as usual, starting with introduction to the topic. इस स्लाइड में जो पॉइंट्स मेंशन्ड हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर हैं ताकि लेक्चर को सुनने के बाद कोई फर्दर कन्फ्यूजन और एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी लाइक सिचुएशन वहाँ पे प्रिवेल ना करे. पॉइंट फर्स्ट है, एज वन ऑफ द काउंटरवेट्स टू चाइनाज BRI, IMEC stands for the India Middle East Europe Economic Corridor was announced on the sidelines of G20 summit in India on September 10th, 2023. जैसे लेक्चर के प्रियम्बल में मेंशन किया जा चुका है कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको G20 समिट के दौरान इंडिया में इसको लॉन्च किया गया एज अ काउंटरवेट और एज एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI. इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स एंड बहुत सारे एकेडमिशियंस कहते हैं कि इट्स बाइडन्स अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट टू BRI और इसको कहा जाता है बाइडन रोड इनिशिएटिव, जो कि पॉइंट सेकंड है. थर्ड पॉइंट अगर देख लें कनेक्शन में, द IMEC's multi-billion and multi-modal connectivity scheme aims to connect India with Middle East and Europe. इस प्रोजेक्ट के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो एलाइज हैं उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से BRI को और स्पेसिफिकली CPEC को बाईपास किया जाए और इस इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया को फर्स्टली मिडिल ईस्टर्न रीजन के साथ कनेक्ट किया जाए, फिर उसके बाद आगे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इस प्रोजेक्ट को और कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाए थ्रू दिस प्रोजेक्ट. नेक्स्ट सिग्नेटरीज़ की बात करें कि इस प्रोजेक्ट में कौन से ऐसी कंट्रीज है या नेशन है जो कि टेक पार्ट और जो कि मेंबर्स हैं, तो उनमें हमारे पास सऊदी अरेबिया है, UAE है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, फ्रांस एंड EU है, ऑल्दो इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इट. Next point है, through this connectivity project, India and its Western allies attempt to bypass China's BRI and make inroads into the Middle East. एंड पॉइंट होगा इस प्रोजेक्ट का व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया, वो इसराइल का जो हैफा पोर्ट है वहाँ पे एंड पॉइंट होगा, यानी कि इंडिया को कनेक्ट किया जाएगा मिडल ईस्ट के साथ थ्रू मेरी टाइम रूट. फिर आगे मिडल ईस्ट यानी कि इसराइल से आगे जो है ना वो लैंड रूट होगा या रेल रूट उसको हम कहेंगे. आगे हम देखेंगे कि इस कॉरिडोर में 2 इसमें सब पॉइंट्स हैं या 2 इसमें फर्दर सब ऑर्गन्स और सब कॉरिडोर्स हैं, जिसमें से एक हमारे पास ईस्ट कॉरिडोर है एंड दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर है. सो यहाँ तक हमें ये बात समझ आती है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है और एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज की ये कोशिश है कि चाइना का जो BRI है स्पेसिफिकली CPEC उसको बाईपास किया जाए बाय इंट्रोड्यूसिंग और बाय पिचिंग एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI. आगे अगर मूव ऑन कर लें
तो इस प्रोजेक्ट के अगर इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के फंडामेंटल जो अंडरपिनिंग्स हैं उनके बारे में अगर बातचीत कर लें तो जैसे मैंने आपको बताया, इट कंटेन्स 2 सेपरेट कॉरिडोर्स एम्ड एट लिंकिंग इंडियाज ईस्ट कोस्ट via sea with the United Arab Emirates and a rare route crossing the Arabian Peninsula with Israel's Port Haifa as the end point. यानी इस प्रोजेक्ट में हमारे पास दो ही ऐसे कॉरिडोर्स हैं जिनके थ्रू इस पूरी कनेक्टिविटी का जो फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म है उसको ब्रिंग अबाउट और मटीरियलाइज किया जाएगा, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो कॉरिडोर है वो है ईस्ट कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर इंडिया को लिंक करेगा अरेबियन पेनिनसुला के साथ थ्रू मैरीटाइम रूट, यानी सी के थ्रू। हमारे पास जो इस केस में जो कनेक्शन है बिटवीन इंडिया एंड अरेबियन पेनिनसुला उसको इंश्योर किया जाएगा थ्रू ईस्ट कॉरिडोर। दूसरा जो इसमें कॉरिडोर है वो नॉर्दर्न कॉरिडोर है, जिसमें इसराइल का जो हैफा पोर्ट है उससे आगे यूरोपियन कंट्रीज़ तक लिंक किया जाएगा इन मेंबर कंट्रीज़ को। तो इस कनेक्शन में ये दो हमारे पास सब कॉरिडोर्स हैं विद इन IMEC। अगर इस प्रोजेक्ट और इस इनिशिएटिव का मैप देख लें फॉर ग्रेटर क्लैरिटी, तो जैसा कि स्क्रीन पर विजिबल है कि इंडिया को कनेक्ट किया जाएगा थ्रू मैरीटाइम रूट सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के साथ। फिर उसके बाद इसराइल से ऑनवर्ड्स जो है वो हमारे पास जो रेल रूट है उसके थ्रू लिंक किया जाएगा इस पोर्शन को, फिर आगे यूरोप के साथ लिंक किया जाएगा। जैसे इज विजिबल ऑन स्क्रीन दैट दिस कॉरिडोर कंटेन्स दिस इनिशिएटिव कंटेन्स 2 corridors in the form of East Corridor connecting India to Arabian Gulf and Northern Corridor connecting Arabian Gulf with Europe। सो ये इस प्रोजेक्ट का जो रूट मैप है वो आप लोगों को यहाँ पे विजिबल है। अगर इस प्रोजेक्ट में सर्टन डायमेंशन देखें या वो एरियाज देख लें जो कि इस प्रोजेक्ट का सेंटर पॉइंट है, या इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या मेंबर कंट्रीज या जो सिग्नेटरीज हैं वो क्या करना चाहते हैं, तो उस कनेक्शन में सर्टन यहाँ पे पॉइंट्स मैंशनड हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। The project or the IMEC is promising to deliver green, sustainable and resilient quality infrastructure। यहाँ पे ये बात क्लियर होना मस्ट है कि इस प्रोजेक्ट में कोई ऐसी नई चीज़ है ही नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो एक यूनिक जो एलिमेंट या यूनिक जो ट्रेड जिसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है और अटेम्प्ट किया है मेंबर कंट्रीज और सिग्नेटरीज ने, वो ये है कि किसी भी तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसको कंसीडर किया जाए बाय यूजिंग सच टर्मिनोलॉजीज एज क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी या रिजिलियंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ऐसे एकेडमिक लेक्सिकन को इसमें यूज़ किया गया है ताकि जो नेशंस हैं स्पेसिफिकली जो लोअर एंड मिडिल इनकम जो नेशंस हैं उनको किसी भी तरीके से लोअर इन किया जाए। क्योंकि चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर ब्री, उनके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी टाइम से सस्पिशंस क्रिएट करता रहा है कि वो सस्टेनेबल नहीं है या वो एंटी क्लाइमेट हैं। तो जिसकी वजह से उन्हीं प्रोजेक्ट की जो सस्पिशियसनेस है उनकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने एक स्टेटमेंट और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया था BDN के नाम से, ब्लू डॉट नेटवर्क के नाम से। तो यूनाइटेड स्टेट्स अब ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके माइंड में एक सेंस ऑफ क्लैरिटी क्रिएट किया जाए, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इनको इंट्रोड्यूस किया जा सके ताकि जो कंट्रीज जो ऑलरेडी पार्ट हैं ब्री का उस प्रोजेक्ट को या इस डेवलपमेंटल इनिशिएटिव को छोड़ के बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अब IMEC एंड यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ आ जाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ब्री जो है उसको काफ़ी सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ने उसकी फिजिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को ऑलरेडी कंफर्म किया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश ये है कि क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी लाइक टर्म्स से बाकी जो कंट्रीज हैं उनको ट्रिक करे, जो कि पॉसिबल है नहीं। सेकेंड पॉइंट, IMEC is encompassing rail link connectivity, electricity cables, hydrogen pipelines। अब इसमें जो टर्म है हाइड्रोजन पाइपलाइन ये डिनोट करती है कि इस प्रोजेक्ट में जो नई चीज़ या एक नया एलिमेंट जिसको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है वो है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको एड्रेस किया जा सके थ्रू सच प्रोजेक्ट्स। एंड हाई स्पीड डेटा केबल्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ज़ाहिर बात है डिजिटलाइजेशन का दौर है, डिजिटाइज कर रही है कंट्रीज़, तो इस वजह से कोशिश है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है डेवलपिंग नेशंस या लोअर इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, उस गैप को किसी भी तरीके से ब्रिज किया जा सके। तो ये कुछ सर्टन फंडामेंटल्स हैं। फर्दर अगर पॉइंट्स देख लें, इस्टेब्लिशिंग रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क, एक प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का एक जो प्राइमरी जो फंडामेंटल पिलर है प्राइमरी पिलर है वो ये है कि नेशंस और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन्स को कनेक्ट किया जाए ताकि ग्रेटर रिलायंस एंड इंटरकनेक्टिविटी हो, ताकि वहाँ पे एक शेयर्ड इंटरेस्ट और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का जो एलिमेंट होता है उसको वहाँ पे मटीरियलाइज किया जा सके। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कंप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग मैरीटाइम एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स,
कोविड-19 एंड सच अदर डेवलपमेंट्स की वजह से जो सप्लाई चेन्स हैं वो अनसस्टेनेबल रहे, या सप्लाई चेन्स में जो एक ब्रेक आया ड्यू इन पार्ट टू सम नेचुरल क्लैमिटीज़। अब फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन को कर्टेल एंड डील करने के लिए ऐसे न्यू कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया जा रहा है, ताकि ये जो सप्लाई चेन्स हैं ये सस्टेनेबल हों, रिलायबल हों एंड फंक्शनल हो अंडर ऑल कंडीशंस। एक ये इसका रीजन डेट्रा है। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेटिंग सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर हमारे पास सप्लाई चेन्स आज सप्लाई जो लाइन्स है वो फंक्शनल होंगे ऑल द टाइम, तो उस केस में जो मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की अक्रॉस द ग्लोब वो इंश्योर होगी, जो कि एक इस प्रोजेक्ट का एक पॉइंट है। फोर्थ है इन्हांसिंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड क्रिएटिंग जॉब्स। एस ऑलवेज प्रोजेक्ट्स में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे भी बातें हैं कि किसी भी तरीके से एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ट्रेड की जो मूवमेंट है या इंटरस्टेट जो ट्रेड है उसको एक्सेलरेट करना है एंड जॉब को क्रिएट करना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं या फंडामेंटल्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। आगे अगर एक हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट देख लें, अ ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशंस, यानी वेस्टर्न जो मीडिया है उसका कहना यह है कि IMEC एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज की तरह एक्ट करेगा टू कनेक्ट और टू टेलर टुगेदर कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशंस। फिर नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्स, यानी द IMEC कंप्लीमेंट्स द ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूरोपियन यूनियन। इस ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव के बारे में एक कंप्रिहेंसिव लेक्चर इसके बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप लोगों ने ये याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन ने एक अपना एक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है एज अ काउंटर वेट टू चाइनाज ब्री। तो जो IMEC है उसके थ्रू कोशिश ये है वेस्टर्न कंट्रीज़ की कि वो किसी भी तरीके से IMEC प्लस ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव को लिंक किया जा सके और इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पिच किया जा सके एज एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज ब्री। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग यूरोप्स ग्रेटर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एंड रिलायंस इन इंडिया टू काउंटर एंड कन्फ्रंट चाइना। 2000 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इंडिया को स्ट्रेंथन किया जा सके, इम्बोल्डन किया जाए इंडिया को, ताकि इंडिया जो है ना इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और इन टाइम्स ऑफ नीड एज एन अल्टरनेटिव और एक ऐसा ब्रिक और एक ऐसे ब्लॉक की तरह एक करे, ताकि वो चाइना को कन्फ्रंट एंड कंटेन करे इन द न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। सो यहाँ तक हमें ये बात समझ आती है कि ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव को कंप्लीमेंट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ IMEC। इन दो प्रोजेक्ट्स के थ्रू वेस्टर्न नेशंस की कोशिश है कि इंडिया को एज अ काउंटर वेट इंट्रोड्यूस किया जा सके टू चाइना, ताकि चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, चाइना की जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिसलरेट किया जा सके। यहाँ इस कनेक्शन में अगर जर्मन चांसलर की अगर एक स्टेटमेंट को यहाँ पर मेंशन करें तो उनका कहना यह है कि द यूरोपियन नेशंस वांट टू डाइवर्सिफाई एंड स्ट्रेंथन इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन डिफेंस सेक्टर। ये बात ऑब्वियस है कि अगर इंडिया को एज अ काउंटर वेट और काउंटर वेलिंग फोर्स इंट्रोड्यूस करना है अगेंस्ट चाइना, तो उस केस में इंडिया की ट्रेड, इकोनॉमी, डिफेंस और आर्मी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाए, ताकि वो चाइना जैसी पावर को कंटेन एंड कन्फ्रंट कर सके। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट टू पाकिस्तान डेट्रीमेंट में हमने बात की है कि IMEC का पर्पस ये है कि वो जो टी में से जो एक सबसे ज़्यादा प्राइमरी जो एक कॉरिडोर है CPEC के नाम से उसको बाईपास करें। अब अगर CPEC किसी भी तरीके से बाईपास हो जाता है तो उसका जो सबसे बड़ा लॉस है वो पाकिस्तान के अलावा शायद ही किसी और कंट्री को हो, तो इस वजह से पाकिस्तान के कंसर्न्स यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, moreover the IMEC has been pitched as complementary organ of the Partnership for Global Infrastructure Investment Initiative। अब ये B3W जो ऊपर हमने इंट्रोडक्शन में बात की है उसी को दोबारा से रीनेम करके PGII का नाम दिया गया है, जो कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बाय G7 कंट्रीज, जिसमें फ्रांस है, US है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा, इटली एंड UK है। यानी इन G7 कंट्रीज़ ने B3W को रीनेम किया है, उसका जो नया नाम है वो है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये हमारे पास सर्टेन फंडामेंटल्स हैं अबाउट द IMEC। अगर इसका पर्पस देख लें कि क्या है, एक तो होता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स का कुछ पर्पसेस होते हैं जो कि ऑफिशियली जो है ना वो स्टेटेड होते हैं, या जो इनके एडवाइज़र्स होते हैं या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो मीडिया ब्रीफिंग्स के थ्रू या मीडिया ब्रीफिंग्स के दौरान इन जैसे प्रोजेक्ट्स की जो असल जो रेजन डेट्रा है या जो पर्पस है उसको मेंशन करते हैं। तो इस कनेक्शन में अगर हम IMEC के सर्टेन स्टेटेड गोल्स को अगर मेंशन करें तो फर्स्ट इस केस में है इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी वाया इंक्रीज एनर्जी फ्लो एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस।
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, तो आई बिलीव आप लोगों को समझ आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख लें, डीलिंग विद लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या जिनको हम लोअर एंड मिडिल जो इनकम कंट्रीज है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इंट्रा कंट्री जो कनेक्टिविटी है या इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है। डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो फोर्थ। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है, इस गैप को ब्रिज करने के लिए एक प्रोजेक्ट, या ये जो प्रोजेक्ट है इसका एक फंक्शन ये भी है कि जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। थर्ड पॉइंट है मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज बाय गोइंग ग्रीन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मिक्स। जैसे ऊपर हमने बात की, हाइड्रोजन को यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाएगा ताकि जो एक क्लाइमेट चेंज की शक्ल में जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ह्यूमन बींग्स फेस कर रहे हैं, इस इशू को मिटिगेट और एड्रेस किया जा सके। पॉइंट फोर्थ, ग्रीन सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो आपको डिफरेंस बताया था मैंने बिटवीन ब्री एंड IMEC या यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज की जितनी कोशिशें हैं और उन तमाम इनिशिएटिव जिनको वेस्टर्न नेशंस लॉन्च कर रहे हैं या लॉन्च कर चुके हैं, उनमें जो एक चीज़ न्यू है या जो एक ऐसा एलिमेंट जो कि सो कॉल्ड यूनिक है, वो क्लाइमेट चेंज का या जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो इशूज़ है वो हैं। लाइक दे वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस द ग्रीन सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं या डेवलपमेंट को इन कंप्लीमेंटेरिटी विद क्लाइमेट किया जा सके, ताकि वहाँ पर जो इशू है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का, इन इशूज़ को कर्टेल और इन इशूज़ को एड्रेस किया जा सके। सर्टेन एंड स्टेटेड एम्बिशंस की अगर बात कर लें कि IMEC के थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स की क्या एम्बिशंस हैं, तो उनमें सबसे फर्स्ट है The IMEC is America's diplomatic tool to keep China from making inroads in the Middle East। ये ऑब्वियस है कि चाइना का जो एक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, उसको किसी भी तरीके से वहाँ पर कंटेन करना है, कर्टेल करना है, कन्फ्रंट करना है, जो कि पॉसिबल है थ्रू IMEC, क्योंकि मिडल ईस्ट एशिया में ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क और एक ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ I2U2। तो ये IMEC एक दूसरा ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स I2U2 को फर्दर फोर्टिफाई एंड कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट 2 है पिचिंग इंडिया एज काउंटरवेलिंग टेंडेंसी अगेंस्ट चाइना। जाहिर बात है IMEC में या क्वाड की बात कर लें तो इंडिया हर केस में मेंबर है, तो इंडिया को ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बनाकर इंडिया को तैयार करना है अगेंस्ट चाइना। Point third, regaining the United States lost credibility, reliability, and the role of global policeman by creating suspicion against and alternatives to China's 21st century's Marshall Plan। अब ये ऑब्वियस है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना काफ़ी टाइम से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है ना वो वेज कर रहा है अगेंस्ट चाइना टू क्रिएट सस्पिशन ऑन चाइनाज डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव्स, जिसकी वजह से चाइना को कभी CCP को की फॉर्म में रेफ़र किया, या चाइना का जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, उसको लेके वेस्टर्न जो एकेडमिक्स हैं या मीडिया है वो नेम एंड शेम करता है। तो पर्पस सिर्फ ये है कि दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल कम्युनिटी में एक चाइना के बारे में कन्फ्यूजन और एक केओस क्रिएट किया जा सके, ताकि जो नेशंस जो कि चाइना के ब्री में हैं उनको साइड लाइन किया जा सके। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना पॉलिटिकल जो उनकी फ़िलॉसफी है और उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब हो। तो ये एक अनस्टेटेड एम्बिशन है इस प्रोजेक्ट का। फोर्थ पॉइंट है एडिंग मोर टू अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसमें हमें पता है अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, इन अकॉर्ड्स को और इस नॉर्मलाइजेशन को फर्दर कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन करने की एक कोशिश है। स्ट्रेंथनिंग द I2U2, जैसे मैंने पहले बताया है, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग को यहाँ पे बनाया है, वैसे ही वेस्ट एशिया में या मिडल ईस्ट में I2U2 के नाम से एक वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, इसराइल है, UAE है, इंडिया है। I2U2, I2 stands for Israel and India, U2 stands for United States and UAE। तो ये I2U2 जो है ना एक सिक्योरिटी ब्लॉक और ग्रुपिंग है इन मिडल ईस्ट। I2 stands for India and Israel, U2 stands for UAE and US। सो नेक्स्ट एंड रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान इन चाइना एंड मिडल ईस्ट। जैसे कि आपको पता है कि मिडल ईस्ट में जिस तरह का रोल जो एक क्रेडिबल एंड एक इन्फ्लुएंशियल रोल चाइना प्ले कर रहा है, जो कि अदरवाइज पहले अगर हिस्टोरिकली देख लें तो यूनाइटेड स्टेट्स प्ले करता रहा है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन हुई या जो डिप्लोमेटिक रिप्रोचमेंट हुई बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, इस रिप्रोचमेंट के बाद चाइना का जो रोल है, चाइना की जो क्रेडिबिलिटी है
वो मज़ीद इंक्रीज़ हो चुकी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की अब कोशिश ये है कि चाइना एंड इंडिया ईरान को मिडल ईस्ट में किसी भी तरीके से कन्फ्रंट किया जा सके, ताकि ये दोनों जो रिविजनिस्ट पावर्स हैं ये फर्दर वहाँ पर रूट्स गेन ना कर सकें। तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की अब कोशिश है कि IMEC के थ्रू I2U2 को फर्दर सॉलिडिफाई करें। नेक्स्ट पॉइंट है रेंडरिंग एन अल्टरनेटिव टू रिवैम इट्स लॉस्ट स्टेटस एंड ड्राइंग अ वेज बिटवीन चाइना एंड गल्फ नेशंस वाया एन अल्टरनेटिव। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास अपने पास कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए कुछ है नहीं, तो इस वजह से कन्फ्यूजन के थ्रू या एक अल्टरनेटिव के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश ये है कि जो गल्फ नेशंस हैं स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड UAE उनको किसी भी तरीके से अपनी तरफ कर लें, ताकि चाइना की जो वहाँ पे एम्बिशंस हैं वो फुलफिल ना हो। तो इस कनेक्शन में अगर सर्टन यहाँ पे इनिशिएटिव्स देख लें कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने सर्टन इनिशिएटिव्स के थ्रू चाइना को जो है ना वो स्टोन वॉल करने की कोशिश की, तो फर्स्ट हमारे पास से बिल्ड एक्ट इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप के दौर में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। फिर B3W है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लॉन्च किया था, जिसका अब जो नया नाम है PGII, जो कि अराउंड G7 कंट्रीज़ के साथ बाइडन ने लॉन्च किया था, और उसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो 600 बिलियन है। फिर यूरोपियन यूनियन ने, जैसे ऊपर हम बात कर चुके हैं, ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है एस एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज ब्रीफ, जिसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो 300 बिलियन है। फिर एक और फोरम जो कि हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के नाम से प्रेसिडेंट बाइडन ने एक और इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो ये सर्टन ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक फेल है, अब तक उसकी जो एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। आगे अगर देख लें कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बिशंस हैं, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के माइंड में जो चल रहा है अगेंस्ट चाइना, तो क्या वो सारी चीज़ें वायबल हैं, फिजिबल हैं, क्या यूनाइटेड स्टेट्स अपने एम्बिशन में सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। अगर इस बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इस सारी सिचुएशन के बाद द IMEC सक्सेसफुल कंप्लीशन हिंजेस लार्जली ऑन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी इन मिडल ईस्ट। अब चूंकि आपको पता है कि मिडल ईस्ट वो रीजन है जो कि इस टाइम सेंटर पॉइंट बना है न्यू कोल्ड वॉर का, या एक ऐसा हमारे पास फ्लैश पॉइंट है जो कि डिफाइन करेगा या डिफाइन करता रहा है कि जो ग्रेट पावर राइवलरी है उसमें सक्सेसफुल या विक्टोरियस पावर कौन होगा, पैरामीटर है या जो रिजल्ट है बिट ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी वो डिफाइन होता है या होगा इन मिडल ईस्ट। तो इस कनेक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं इन्फ्लुएंशियल वन, स्पेसिफिकली UAE और सऊदी अरेबिया, उनको किसी भी तरीके से उनके रिलेशन नॉर्मलाइज करवाए जा सकें इसराइल के साथ, ताकि वहाँ पर चाइना और ईरान को काउंटर करना ईजी हो। तो इस कनेक्शन में यहाँ पे लिखा है दी IMEC सक्सेसफुल कंप्लीशन हिंजेस लार्जली ऑन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी इन मिडल ईस्ट। लेकिन मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं है। रिसेंटली अगर आजकल की बात कर लें, हमास और इसराइल के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं उसकी वजह से रीजनल पीस जो है ना शटर्ड हो चुका है। फिर इसराइल ईरान रिलेशंस तो ऑलरेडी ख़राब हैं। फिर सऊदी अरेबिया एंड UAE के बीच में भी काफ़ी रिलेशंस जो है ना वो ब्लीक रिलेशंस हैं ड्यू टू सम इश्यूज लाइक यमन वार के केस में बड़े ग्रीवांसेस हैं UAE को सऊदी अरेबिया के बारे में। फिर सऊदी अरेबिया एंड UAE के जो फ्यूचर एम्बिशंस हैं वो एक दूसरे के साथ डाइवर्जेंट हैं, यानी एक दूसरे के बारे में सस्पिशियस का शिकार हैं दोनों कंट्रीज। तो इनके रिलेशंस थोड़े से मतलब नोज डाइव कर रहे हैं। तो अब सऊदी अरेबिया और इनके रिलेशंस ठीक ना हो UAE, तो ओवरऑल जो जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अगर वो अनसर्टन होगी, वॉलेटाइल होगी, तो उस केस में IMEC हो या I2U2 हो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर ये दोनों जो ग्रुपिंग्स हैं IMEC एंड I2U2 सक्सेसफुल नहीं होते, तो इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बिशंस हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फर्दर आगे है, अगर हम सऊदी अरेबिया एंड UAE के बारे में बात कर लें तो दीज टू कंट्रीज डेसिफर द IMEC एज अल्टरनेटिव as an inclusive and complementary opportunity to fulfill their vision 2030 and becoming global trade and transit hub respectively। अगर हम देख लें कि यूनाइटेड स्टेट्स चूँकि इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से सऊदी अरेबिया और UAE को अपने ब्लॉक में कर ले, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की ये कोशिश जो ना अभी तक नाकाम है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड UAE दोनों की कोशिश ये है कि वो जो ग्रेट पावर्स हैं लाइक चाइना एंड US दोनों के इनिशिएटिव्स में इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, ताकि ये मैसेज ना जाए कि ईदर ऑफ दीज कंट्रीज आर चूजिंग वन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। तो ये दोनों कंट्रीज सऊदी अरेबिया एंड UAE दोनों प्रोजेक्ट्स या दोनों कंट्रीज़ के जो इनिशिएटिव्स है उसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि वो उनके जो फ्यूचर जो विजन्स हैं लाइक सऊदी अरेबिया का जो विजन है 2030 उसको राइट ऑन टाइम कंप्लीट कर सकें। सिमिलरली यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का जो एक फ्यूचर एम्बिशन है टू बिकम ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रांजिट हब
इस तरह के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए ये दो कंट्रीज दोनों ग्रेट पावर्स के साथ इक्वली पार्टिसिपेट और इक्वली जो है ना वो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इस केस में यूनाइटेड स्टेट्स की जो कोशिश है टू ड्रॉ वेज वो पूरी नहीं हो सकती या सक्सेसफुल नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, सऊदी अरेबिया बिकेम अ डायलॉग पार्टनर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इनवाइटेड टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिक्स। एक पॉइंट ऑब्वियस है आप लोगों को, अगर सऊदी अरेबिया वहाँ SCO का ऑलरेडी डायलॉग पार्टनर है, ब्रिक्स का पार्टनर अभी मेंबर होने जा रहा है, तो इस केस में सऊदी अरेबिया को चाइना से दूर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है, इन कोलैबोरेशन विद 6 मेंबर्स ऑफ गल्फ कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया हैज इंडोर्स्ड चाइना's newest प्रोजेक्ट्स, जिसमें ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है शी जिनपिंग का एंड द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। ऐसे इनिशिएटिव्स को सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी इंडोर्स किया है। सऊदी अरेबिया की इंडोर्समेंट का मतलब ये है कि जो गल्फ नेशंस हैं, बाकी जो कंट्रीज अरब कंट्रीज हैं, वो फॉलो सूट करेंगे सऊदी अरेबिया को। नेक्स्ट है, द इजराइल हमास वॉर इन पैलेस्टाइन फर्दर कोल्यूडिंग, इट्स नॉट फर्दरिंग, यहाँ पे फर्दर करें, कोल्यूडिंग द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द IMEC टू स्टैंड ट्रू टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जब मिडल ईस्ट में पैलेस्टाइन इशू अगर अनरिजोल्व रहेगा, जो कि एक डीप स्टैंडिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग इशू है, जब तक ये रिजोल्व नहीं होता तब तक मिडल ईस्ट में पीस एंड स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। मिडल ईस्ट में अगर पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होती तो कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इनिशिएटिव और कोई भी जो फ्रेमवर्क है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फिर आगे है मैच्योरिंग रोल ऑफ चाइना एज पीस ब्रोकर, जैसे हमने ऊपर बात की है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो रिप्रोचमेंट चाइना ने करवाया, उसके बाद मिडल ईस्ट हो या अक्रॉस द ग्लोब हो, चाइना का जो रोल है या क्रेडिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है, मैच्योरिंग रोल ऑफ चाइना एज पीस ब्रोकर रीड सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिप्रोचमेंट इज फर्दर वीकनिंग US क्रेडिबिलिटी एंड इंटेंट टू फोस्टर ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है, डिटीरियोरेटिंग सऊदी अरेबिया US रिलेशंस। चूँकि आपको पता है प्रेसिडेंट बाइडन की बात कर लें तो बड़े सारे कंसर्न्स रहे ह्यूमन राइट्स पर, जमाल खशोगी की मर्डर के बारे में बाइडन का जो है ना वो जो रिएक्शन हुआ या जो स्टेटमेंट्स हैं। फिर ऑयल क्राइसिस की बात अगर कर लें कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद जो ऑयल प्राइसेस के केस में जो हीटेड एक्सचेंज हुआ था वर्ड्स का बिटवीन MBS एंड बाइडन, उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं है या नॉर्मलाइज नहीं है। और फिर बाइडन का एक स्टेटमेंट था अबाउट सऊदी अरेबिया कि सऊदी अरेबिया इज़ अ पेरियर स्टेट। तो ये वो सर्टन डेवलपमेंट्स है जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं उस नेचर के नहीं है जैसे हुआ करते थे या जैसे पहले थे। फिर एडिंग रिलेशंस अगर टर्मोइल होंगे या रिलेशन जो ना स्ट्रेंडेड रिलेशंस होंगे तो दे विल एड मोर टू चाइनाज कॉन्फिडेंस एंड सऊदी अरेबियाज रेडीनेस टू एंगेज मोर विद ईच अदर। तो अगर रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड US ठीक नहीं होते तो उस केस में एक प्लस पॉइंट है चाइना को कि वो इन दो कंट्रीज़ के बीच में जो एक एसेबिलिटी है या बिटरनेस है उसको कैश करे। इस सारी सिचुएशन के बाद अगर इस कॉरिडोर की बात करें तो टर्किश जो प्रेसिडेंट है उर्दगान, उनका कहना है कि देयर इज़ नो कॉरिडोर विदाउट टर्की। टर्की चूँकि IMEC का हिस्सा नहीं है तो इस केस में जो भी कॉरिडोर या जो भी ऐसा इनिशिएटिव हो जिसमें मिडल ईस्ट इन्वॉल्व हो और जिसमें कनेक्टिविटी हो बिटवीन मिडल ईस्ट और यूरोप, तो उस केस में जब तक टर्की को उसका मेंबर नहीं बनाया जाता उस केस में उस कॉरिडोर और उस इनिशिएटिव का सक्सेस जो रेट है वो अनसर्टन होगा। सो IMEC के बारे में ये समझ आता है कि एक ऐसा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज कनेक्ट करना चाहते हैं इंडिया को विद अरेबियन पेनिनसुला एंड थ्रू अरेबियन पेनिनसुला यूरोप के साथ, ताकि इन कंट्रीज़ के बीच में जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो एक्सेलरेट करें। अगर एक्सेलरेट होते तो उस केस में चाइना का जो ब्री है वो बाईपास हो जाता है। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.